جی تو آج بنگلہ دیش نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے کرکٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے. نیچرلی بنگلہ دیش کی کرکٹ تو اس سے اوپر جائے گی، لیکن اوور آل ورلڈ کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز سے، کیونکہ اب جتنی چھوٹی نیشنز ہیں ان کو اپنی پرائرٹیز کا پتہ چلے گا کہ آپ اگر اپنی پرائرٹیز درست رکھیں تو آپ بڑی سے بڑی ٹیم کو بھی ہرا سکتے ہیں، ان کے گھر پہ جا کے ہرا سکتے ہیں. کیونکہ آج بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو ان آسٹریلیا ہرایا ہے. آسٹریلیا کے اندر تو بہت مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آسٹریلیا وہ ٹیلنٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے. لیکن یہاں بات بنگلہ دیش کی ہے، بنگلہ دیش کی پرائرٹیز کی ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی پرائرٹیز کو کیسے سیٹ کیا، ٹیسٹ میچ کرکٹ کے اوپر فوکس کیا. اور آج دیکھیے انہوں نے جو آج سے کچھ سال پہلے ایک چیز امپاسبل لگتی تھی، اب انہوں نے پاسبل کر دکھائی ہے اپنی اچھی پلاننگ کی وجہ سے، اپنے صحیح لوگوں کو چننے کی وجہ سے، رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کی وجہ سے. اور سب جب ایک پیج پہ ہوتے ہیں نا تو پھر رزلٹس ایسے ہی آتے ہیں. سب جب ترقی کرنا چاہتے ہیں تو رزلٹ ایسے ہی آتے ہیں. جب سب کے سب چاہتے ہوں کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ اوپر جائے تو رزلٹس ایسے ہی آتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا، 9 وکٹ سے کامیابی حاصل کی ہے. کل میں نے یہی بات کی تھی کہ زیادہ ٹارگٹ ملنا نہیں چاہیے، یہی 50-60 کے ارد گرد کا ٹارگٹ ملنا چاہیے، اور وہی ہوا. 57 رنز کا ٹارگٹ تھا جو کہ انہوں نے 1 وکٹ پہ ہی پورا کر لیا. بہت ہی اچھی ٹیم ایفرٹ بنگلہ دیش کی جانب سے. وہ حسن محمود ہوں جنہوں نے 9 وکٹس حاصل کیے، وہ تنزید ہوں جنہوں نے سینچری سکور کی، وہ نجم الحسین شانٹو ہوں جنہوں نے 80-85 رنز کیے، اور سیکنڈ اننگ میں آ کے مہدی حسن ریاض نے 5 وکٹس حاصل کیے. تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس جیت کے لیے، کیونکہ سب جیتنا چاہتے تھے. سب اپنی کنٹری کی جو کرکٹ ہے اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے تھے. جب سب ایسے ہوں تو میں نے کہا تو پھر کرکٹ اوپر جائے گی. ٹیسٹ میچ کرکٹ کو انہوں نے اپنی پرائرٹی بنایا ہے، اور شاید یہی کمی پاکستان کرکٹ میں نظر آتی ہے کہ ہم لمبے فارمیٹ کی کرکٹ کو اپنی پرائرٹی نہیں سمجھتے ہیں. جنہوں نے سمجھی ہے اپنی پرائرٹی، وہ دیکھیے ان کو ریزلٹس بھی کس طریقے سے مل رہے ہیں. تو بہت ہی شاندار یہ اچیومنٹ بنگلہ دیش کی جانب سے، جس کا ورلڈ کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا. آسٹریلیا کی ہم نے پہلے بات کی کہ آسٹریلیا کو ایسا ٹیلنٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے. شاید ویسٹ انڈیز کی طرح ان کو بھی T20 کرکٹ نے افیکٹ کیا ہے. اب زیادہ تر فوکس جو ہے وہ T20 کرکٹ پہ، وہ ایسے کرکٹرز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں جو کہ ون ڈے یا ٹیسٹ میچ کرکٹ کے لیے وہ موزوں ہوں. ہاں T20 کرکٹرز وہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ میچ میں ان کی ڈپ آیا ہے. ابھی ہماری بحث بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ایک بار نیچے آئی تھی کرکٹ، دوبارہ کرکٹ اٹھ گئی تھی لیٹ 80s میں، اور پھر 90s میں جا کے لیٹ 90s میں وہ دوبارہ رائز کر گئے تھے. تب T20 کرکٹ نہیں تھی. میرا یہی موقف ہے. اب T20 کرکٹ ہے، اب بہت بڑا ایک چیلنج ہے آسٹریلین کرکٹ کے لیے کہ T20 کرکٹ سے واپس ریڈ بال کرکٹ پہ یا ون ڈے کرکٹ کے اندر کیسے لایا جائے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں لوگ کہ یار پریمیم فاسٹ بالرز ان کے پاس 3، لیکن اب ان 3 فاسٹ بالرز کی ایج دیکھیے 35، 37، 38. اب وہ ان کی ایج جانے والی ہو گئی ہے، اور آنے والا کیا ہے ابھی تک کوئی ایسا نام نہیں یاد پڑتا ہے کہ ہم کہیں کہ یار ہاں یہ فیوچر آف آسٹریلیا ہے. ورنہ نارملی کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا تھا کہ یار کہتے تھے ہاں یار چلو یہ جائیں گے تو وہ ریڈی کھڑے ہوئے. لیکن اب نہیں ہے، اب زیادہ T20 والے بالر ہیں. نیتھن ایرس کو دیکھ لیجیے، سولر ون پہ میں بہت ان کو عبور حاصل ہے، لیکن اس طریقے سے وہ ریڈ بال کے اندر وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوں گے. تو شاید اب باقی ملکوں کی طرح جہاں پہ ویسٹ انڈیز اسٹک ہوا ہے یا سری لنکا کو افیکٹ ہوا ہے T20 کرکٹ کا، آسٹریلیا کو بھی ہوا ہے، پاکستان کو بھی ہوا ہے کہ اب وہاں پہ لوگ T20 کرکٹ کھیلنا کو پریفر کرتے ہیں. اور دوسری جانب ہے بنگلہ دیش جنہوں نے اپنی پرائرٹی ٹیسٹ میچ کرکٹ رکھا ہے، اور اس کو ان کے ریزلٹس ملنا شروع ہو گئے. تو تھینک یو بنگلہ دیش فار میکنگ دا ورلڈ ریئلائز کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. آپ کی ٹیسٹ میچ پرائرٹی ہونی چاہیے، پھر آپ کا نام دیکھیے کیسے بنتا ہے. تو آج ایک بہت اچھا دن بنگلہ دیش کرکٹ کے لیے. شاید اس سے پہلے ایک بڑا دن تھا جب 99 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو ہرایا تھا، اس کے بعد ٹیسٹ اسٹیٹس ان کو ملا تھا. اور آج جب انہوں نے آسٹریلیا کو ہرایا ہے، اور اب اس ٹیسٹ اسٹیٹس میں ان کو اب ذرا تھوڑی سی عبور حاصل ہو گیا، تھوڑی ذرا اہمیت ملنا شروع ہو جائے گی. تو ویل ڈن بنگلہ دیش. تو یہ تو تھی بنگلہ دیش کی جنہوں نے 9 وکٹ سے آسٹریلیا کو ان آسٹریلیا ہرایا. اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی بھی. پاکستان کے لیے بھی کل اچھا دن تھا. پاکستان نے بھی ہرایا PCC 11 کو. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان ان سے پیچھے رہ جائے گا، شاید ان سے بھی نہیں جیت پائے گا. آنے والے جو ٹیسٹ میچ ہے اس میں کیا ہوگا، کافی ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے، ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے تھے رادر آبٹ سے. لیکن کل سعود شکیل کی اس اننگ نے جو انہوں نے 100 رنز بنائے، 101 رن بنائے، اور مطلب جس طریقے سے وہ کھیلے 147 بالوں میں 100 رنز انہوں نے بنائے انفیکٹ، اور اچھی انٹینٹ سے کھیلے. تو 264 رن کا ٹارگٹ تھا جو کہ 3 وکٹ پر پاکستان نے حاصل کر لیا بغیر بابر اعظم کے بھی. اب اس سے کیا ہوا ہے سعود شکیل کی سینچری سے. اب سعود شکیل کی سینچری بنانے سے اب سلیکشن کے اندر کچھ اب مسائل آ جائیں گے، کیونکہ سلمان علی آغا پرفارم کر نہیں رہے ہیں، محمد رضوان پرفارم کر نہیں رہے ہیں.
तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जिस प्लेयर ने 100 रन बनाए हो आप उसको छोड़ दें, अब उसको तो लेके आना है। शान मसूद ने भी 100 रन बनाए, उसको भी लेके आना है। इमामुल हक ने भी कल बहुत अच्छी नहीं खेली है, 88 रन बहुत क्विक टाइम पे उन्होंने किए हैं, उन्होंने सिर्फ 88 बॉलों पे 80 रन किए हैं। तो वो भी एक अपनी वो कह रहे होंगे कि मैंने तो रन किए, उनको कैसे बिठाया जा सके। अब क्या अजान अवैस को बली का बकरा बनाया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा? क्योंकि इन फॉर्म प्लेयर्स को तो आपको खिलाना है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए आप अपने प्रेजेंट को दाव पे लगा दें। अगर इमाम रन्स कर रहे हैं तो वाई नॉट। अब अजान ने खेला है, उसको आगे बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें जीत चाहिए और उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। अब क्या शान मसूद वापस आएंगे तो अब्दुल्ला शफीक के साथ हम देखेंगे इमामुल हक ओपन करते हुए, नंबर 3 पे शान खेलेंगे, 4 पे बाबर खेलेंगे, 5 पे साउथ शकील आ जाएंगे। क्या फिर भी सलमान अली आगा जगह बना पाएंगे? दैट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि आपको या 5 बॉलर्स खिलाने हैं, अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपको 4 बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, फिर आमिर जमाल को नहीं खिलाना पड़ेगा, आपको उनको बिठाना पड़ेगा। तो ये अब ज़्यादा दूर नहीं है टेस्ट मैच। अब इसमें भी देखना होगा कि क्या प्लेइंग 11 पाकिस्तान जो है वो प्रेफर करता है, क्योंकि साउथ शकील की इस सेंचुरी ने काफ़ी हलचल मचा दी होगी। इससे पहले हम देख रहे थे कि थोड़ा सेटल्ड आप कहते हैं सलमान अली आगा आउट ऑफ फॉर्म भी थे, लेकिन वो खेल रहे थे क्योंकि अब जगह है, फिल तो करनी थी, क्योंकि उनकी जगह पे कोई ऐसा प्लेयर था नहीं जो कि रन्स कर रहा था। अब साउथ शकील के वापस आने से यहाँ पे थोड़ी हलचल ज़रूर हो जाएगी, बट एटलीस्ट चले मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस तो मिला है पाकिस्तान को इस जीत से। भले 3 डे मैच था, भले PCC 11 थी, बट जीत होती है। वो अंदर जब आपने आगे जाना है टेस्ट मैच के लिए तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आई थिंक बॉलिंग यूनिट हमारा शायद प्री डिसाइडेड है। वो हम कह सकते हैं कि अब्बास होंगे, मोहम्मद अली होंगे, खुरम शहजाद होंगे, अब चौथा आमिर जमाल होंगे या स्पिनर होंगे या साजिद खान होंगे, तो ये बात की बात है, या चारों होंगे, ये भी एक देखना पड़ेगा। अब चारों को खिला के एक स्पिनर भी साथ खिलाएंगे, ये प्रॉबली ये फैसला जो है ये उस दिन जाके कंडीशंस को देख के, पिच को देख के शायद इसका फैसला किया जाएगा कि क्या आप 5 बॉलर्स के साथ जाएँ या 4 बॉलर्स के साथ जाएँ और आप 7 बैटर्स को खिलाएँ। मैं तो अभी भी मानता हूँ, आई एम फर्म बिलीवर कि आप 5 बॉलर्स के साथ जाइए। अब 4 पेसेस, मतलब 3 मेन फेस पे पेसेस, चौथे आमिर जमाल और 5वें साजिद खान, मेरा ये मानना है। ठीक है, अली उस्मान ने 5 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन साजिद खान के फ़ायदे मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके वो जो लिफ्ट अप करने का जो एक उनके अंदर जो पर्सनालिटी है, जो कि नेवर गिव अप वाली पर्सनालिटी है, वो मानेंगे नहीं, लेकिन वो पूरी टीम पे इफेक्ट डालती है। जब एक बंदा आपका ऐसा हो जो लड़ रहा हो, जो से मर्जी हालात हो, जो मर्जी कंडीशन हो, वो लड़ रहा हो, तो इट जस्ट लिफ्ट्स अप द टीम। तो साजिद खान मेरे तो प्लेइंग 11 में हमेशा से रहेंगे टेस्ट मैच क्रिकेट में। अब देखते हैं कि उस दिन कंडीशंस क्या होती हैं, क्या डिसाइड किया जाता है, तो ये तब की बात होगी। तो अब आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं चैम्पियंस कप की थोड़ी अपडेट के ऊपर। कल एक मैच खेला गया, थोड़ा बोरिंग मैच था, कोई फाइट नहीं दिखाई दी। शायद वो जो एक कहा जा रहा है कि ये इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट्स, इट्स अबाउट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। ये बहुत हमने कोच को भी सुनते हुए देखा, पाकिस्तान ओडीआई के कैप्टन को भी यही मतलब बोलते हुए हमने सुना है। तो उसकी वजह से वो कंपटीशन जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अब ठीक है, आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो देखनी है, लेकिन वो लड़ने का जज्बा, वो मैच जीतने का जज्बा, वो मुश्किल कंडीशन से मैच को निकाल के जीत की तरफ जाने का जज्बा, आपने वो भी तो सीखना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखानी है, आपने लड़कों को ये भी तो देखना है कौन मैच जिता सकता है, कौन मुश्किल हालात से मैच को निकाल के लेके जाके मैच फिनिश कर सकता है। अब अगर आप सिर्फ यही देखते रहेंगे ऐसे टूर्नामेंट से जहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखनी है, तो शायद मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लड़कों के अंदर वो मैच विनिंग हैबिट डेवलप हो, उनको मैच जीतना आना चाहिए। जैसे भी भले वो कैमियोज़ खेलें, 40, 50, 60 रन करें, वो कैमियो से मैच जीतना चाहिए, लेकिन वो मैच नहीं जीतने वाली जो एबिलिटी है ना, उस पर शायद मुझे लगता है इतना फोकस रहा नहीं इस टूर्नामेंट पर। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बिल्कुल डेफिनेटली रहा है, फ़खर ज़मान ने देखा, साहबज़ादा फरहान ने देखा, और कल एक अच्छी चीज़ हुई कि एक यंगस्टर ने, यंग मतलब एज एन क्रिकेट में यंग है, वैसे तो वो ठीक है, अच्छे एक्सपीरियंस है, थोड़े से 25-26 साल उनकी उम्र है, मोहम्मद सुलेमान हैदराबाद से कल है। और वो जो एक कमी थी ना जो हमें नज़र आ रही थी बैटर्स के अंदर, उन्होंने उसको बहुत समझदारी से उन बातों का असर लिया, और उस जो उनको बारी मिली जिस टाइम पे वो आए, उन्होंने अवेल किया, ग्रैब किया उस अपॉर्चुनिटी को। मोहम्मद सुलेमान हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा खेले, और उन्होंने मिडिल के अंदर बहुत अच्छी बारी ली और बहुत कम बॉलों के ऊपर उन्होंने अपने 100 रन मुकम्मल किए। उनका साथ दिया फरहान यूसुफ ने भी, जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो तो डेफिनेटली प्रॉबली पाकिस्तान का फ्यूचर है वो, और वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, कैमियोज़ भी खेलते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मोहम्मद सुलेमान और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अभी एक ही नहीं खेले हैं, होपफुली वो फाइनल में दोबारा उनको खेलने का मौका दिया जाएगा। कल फ़खर नहीं खेले तो उनको रेस्ट दिया गया था, उनकी जगह देखिए सुलेमान खेले, और उन्होंने ऐसे लेते हैं जगह कि एक मौका,
एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। ऐसे लेते हैं अपॉर्चुनिटी। अब कैसे बिठाएंगे उनको अगले मैच के अंदर? प्रेशर डलेगा ना फिर समीर मिन्हाज के ऊपर जो रन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रन्स तो ये भी कर रहे हैं, फरहान यूसुफ भी कर रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी लेनी हो तो ये सुलेमान की तरफ देखिए कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, 100 रन्स किए, टीम को 303 तक पहुंचाया, वो भी बगैर फ़ख्र के 302 रन्स करना वो ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने किया। उमैर बिन यूसुफ ने भी रन्स किए, लेकिन देन अगैन वो जो एबिलिटी है एक स्टार्ट को बड़ी इनिंग के अंदर कन्वर्ट करने की, वो थोड़ी मिसिंग है अभी उनके अंदर। और मैं सोचता हूँ कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, काफ़ी सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही है? वो जो 60-70 करके विकेट गंवाने वाली एबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है। लेकिन सुलेमान ने ऐसा किया कि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थी मोहम्मद हसनैन का रिदम। मोहम्मद हसनैन जो है ना, एक चीज़ उन्होंने जो डिफरेंट की है ना, कि वो बाकी फास्ट बॉलर्स की तरह ना वो स्लोअर वंस नहीं कर रहे हैं, वो कटर्स नहीं कर रहे हैं। उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो तेज़ बॉल करना, और वो तेज़ बॉल ही कर रहे हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ऐसे पिचेस के ऊपर जहाँ पे थोड़ी मदद भी हो, आपको तेज़ बॉल ही करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तेज़ बॉलिंग, तो आप तेज़ बॉलिंग कीजिए, तेज़ बॉलिंग ही करते रहे। वो उनको देखिए वो जिस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस टूर्नामेंट के। शायद शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन दोनों सबसे इम्प्रेसिव बॉलर हैं, क्योंकि वो तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे रह रहे हैं, तेज़, और जितनी विकेट्स को हिट करने वाली बॉलिंग है तेज़ वो कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है। उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ ने भी कल 3 विकेट हासिल किए। मैं तो यही सोचता हूँ जो हमारे ऑलराउंडर्स आमिर जमाल को अपॉर्चुनिटी दी गई, अमाद बट को अपॉर्चुनिटी दी गई, उनसे बेहतर तो फिर फ़हीम अशरफ भी हैं। स्पेशली जब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, क्योंकि बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, कट पुल अच्छा खेलते हैं, तो क्यों नहीं फ़हीम अशरफ की तरफ भी देखा जाए, फ़हीम अशरफ को भी कंटेंशन में रखा जाए। और शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि वो होंगे, क्योंकि उनके पास वो हैबिट है, वो ज़्यादा उस तरह से फ्लैम्बॉयंस पर्सनैलिटी तो नहीं है, लेकिन वो कूल एंड काम है, अपना काम वो बखूबी करते हैं। आपको शायद ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। तो उन्होंने अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, हसनैन ने भी किया है, दानी ने भी किया है। और अभी देखते हैं, अभी साल है तो आगे आगे चलते हैं, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट एटलीस्ट इस टूर्नामेंट से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये थोड़ा सा अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं बार बार उन्हीं लोगों से ये कहता हूँ जो कहते रहें कि इस टूर्नामेंट से क्या मिलेगा। लीजिए, इस टूर्नामेंट से आपको हसनैन की एबिलिटी नज़र आ गई है, फ़हीम अशरफ की इफेक्टिव नज़र आ गई है, मोहम्मद सुलेमान का कैरेक्टर नज़र आ गया कि वो मिडल में क्या कर सकते हैं। तो बस यही मुझे आप लोगों से कहना है, यही मेरी आज की वीडियो का मकसद भी था कि क्या हासिल हो रहा है हमें नेशनल चैम्पियंस कप से। तो मैंने पहले भी गिनाया था, फिर आपको गिना रहा हूँ इसके फ़ायदे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो प्रोबेबली इंशाल्लाह नेक्स्ट कल यहाँ पे ब्रेक का दिन है, क्योंकि आज आखिरी मैच है लीग का, इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। तो विल टॉक अबाउट इट कि यहाँ पे आप अभी तक हमने क्या पाया है, क्या खोया, ज़रा परफॉर्मेंसेस को थोड़ा डिटेल में इस पर बात करेंगे। थोड़ा बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्या होने जा रहा है, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स इंडिया का भी मैच हो रहा है, लेकिन वो बारिश इतनी हो रही है कि उसके ऊपर उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इंडिया ने 288 रन बना लिए, वो अच्छी बात है, वो तेज़ खेल रहे हैं। मैंने कल कहा था कि वो ऐसे बड़े रन करने की तरफ जाएंगे, वो 500 की तरफ जाएंगे, क्योंकि रेन इफेक्टेड मैच है, उनकी बॉलिंग भी थोड़ी से वीकर साइड पे, तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लली कल थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टिल देन।